Hello students, now in this video we will discuss class 12th maths and very important topic. So we have already seen the introduction video and I will also send the introduction video in the given link, and today we are discuss how to find out the given function is maxima or minima, and also we will discuss the point of inflection. Clear? So I have tried this step by step, and also I will explain that. So it is help you to find out the maxima and minima of a given function. Clear? So this is applicable for the first order derivative. Clear? So step 1 we have the differentiate the given function. So suppose we have a given a function fx. Clear? And we have to differentiate the given function with respect to the given function. For example, the function is given into the form of x, so we have to differentiate with respect to x. Clear? x की फॉर्म में अगर गिवन है तो x से डिफ्रेंशिएट करेंगे, और कोई और वेरिएबल है z, अदर एनी वेरिएबल t, so we will differentiate with respect to the t and the given variable. Clear? But the step 1 is differentiate. Okay, when you differentiate, then we get f dash x, first order derivative. So you have to put up this first order derivative is equal to 0. Clear? And find the points. Once you place f dash x is equal to 0, so you will get a quadratic equation, cubic equation, or a linear equation, whatever equation you will get. So you will find the value of x by giving the putting f dash is equal to 0. So step 1 is clear. What step 1 में क्या करना है? डिफ्रेंशिएट कीजिए. स्टेप 2 f dash x को 0 रखिए और पॉइंट्स फाइंड कीजिए by factorization and whatever methods. Now the next step is that allocate the extreme points on the number line. So the points that we get, these points are called extreme points. These points are called extreme points, and we have to put up these points on number line. So E1 extreme point 1, suppose that we are getting 3 extreme points, so E1, E2 and E3. These are, I will take an example. So यहाँ पे 3 एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, E1, E2 एंड E3. क्लियर है? इन तीनों को आपको नंबर लाइन में एलोकेट करना है. एलोकेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप 4, चेक द साइन ऑफ f dash x ऑन नंबर लाइन बिफोर एंड आफ्टर द एक्सट्रीम पॉइंट्स. सो एक्सट्रीम पॉइंट से पहले और एक्सट्रीम पॉइंट के बाद हमको साइन चेक करना है. क्लियर? स्टेप 3 के बाद 4th स्टेप के बाद हमारे पास 3 स्टेप्स और हैं. क्लियर? 3 केसेस अराइज होते हैं. सो व्हेन वी पुटिंग द एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम पॉइंट्स नंबर लाइन पे हम पुटअप कर लेंगे, देन वी हैव 3 केसेस अराइज. द केस 1 is that f dash x move -2 +2 माइनस, मीन्स यहाँ पे प्लस साइन आता है इससे पहले f dash x का. क्या करेंगे? इस पॉइंट को इस पॉइंट से पहले कोई भी एक पॉइंट हम लोग लेंगे. फॉर एग्जांपल ये E1 1 है, 1 हमारे पास कोई पॉइंट आता है, x की वैल्यू, x से पहले हम लोग 1 से पहले कोई वैल्यू पुटअप करेंगे, फॉर एग्जांपल 0, और x के बाद कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 2. तो x से पहले हम लोगों को वैल्यू कहाँ रखना है? f dash x में रखना है, और चेक करना है क्या f dash x पॉजिटिव है. अगर f dash x पॉजिटिव होगा और यहाँ पे 2 पुटअप करने के बाद अगर f dash x नेगेटिव आता है, तो इट मीन्स ये जो पॉइंट आया है एक्सट्रीम पॉइंट, दिस पॉइंट इज अ मैक्सिमा. क्लियर? एक एग्जांपल से हम समझेंगे. बट देखिए, अगर इस पॉइंट पर एक्सट्रीम पॉइंट से पहले आपका फंक्शन पॉजिटिव आता है तो वो कैसा है? इंक्रीजिंग. और एक्सट्रीम पॉइंट के बाद अगर आपके फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो कैसा होगा? डिक्रीजिंग. और ये कंडीशन कब आती है? जब हमारे पास मैक्सिमा हो. क्लियर? दोबारा समझिए, एक्सट्रीम पॉइंट से पहले, तो इस पॉइंट से पहले अगर पॉजिटिव है देन नेगेटिव,
देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, इट मीन्स ये कैसे है कंडीशन, मिनिमा की कंडीशन है। देन पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव, इट मीन्स ये कैसा है, फिर से ये मैक्सिमम की कंडीशन है। क्लियर। तो एक रफ अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो दिस इज द एक्सट्रीम पॉइंट, मैक्सिमा, मिनिमा एंड मैक्सिमा। Clear? It is a rough sketch only for this. So extreme point, before extreme point, if the increasing and positive sign, it means increasing function, and after that negative sign, it means decreasing. So आपको इतना कुछ ये ध्यान नहीं रखना है, आपको ये रखना है कि प्लस से अगर हम माइनस की तरफ जाते हैं तो दिस कंडीशन फॉर मैक्सिमम। क्लियर। केस सेकंड, again if we moving minus sign to positive sign, means minus or positive, it means this function is what, this is decreasing and this is increasing. अगर आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं पढ़ा है तो पहले आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ना पड़ेगा, बट बिफोर दिस एक्सट्रीम पॉइंट इफ इट इज फंक्शन इज डिक्रीजिंग, मीन्स अगर इसको करेक्ट करेंगे तो ये एंगल कितना बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल, इट मीन्स इट इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन, और इसको कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल, सो इट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। सो इतना कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है, यू हैव टू लर्न अबाउट अंडरस्टैंड अबाउट दैट ओनली, यू आर गोइंग टू माइनस साइन टू प्लस साइन, और चेक किसको करना है, एफ डैश एक्स को। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन आपका बनेगा, जो आएगा, उसको आपने चेक करना है। क्लियर है, माइनस साइन टू प्लस साइन, okay, but one more condition arises, case third, when there is no change in sign, means minus then minus, plus and then plus, so this is called the point of inflection. In that case our first derivative test is fail. Clear? And we move to the second order derivative test. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के बाद, फेल होने के बाद हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। क्लियर? ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द कंडीशन आफ्टर दैट।